investment chapter. It This is as call per is now being recorded. AS 13 only. Okay. So some of the technical terms and definition. What do you mean by investment? Again, this we have discussed in the chapter that it is asset held by enterprise for earning income by way of dividend, interest, rent, or for capital appreciation or any other benefit, right? The asset held as stock in trade are not investments. Now, here they are saying that if you're holding any asset, okay, maybe for the purpose of earning income, that is your, let us say, dividend. So you are holding shares. So it is your investment. Or you are holding any debentures or any FD, that is also your investment. Or you are buying some property for earning rent out of it. Here in Bangalore, many people they do that. Okay, or long back when we had a IT boom, many they started doing it. Like they started buying flats on EMIs, and then the same flat they used to give it on rent, and the rent will be almost equal to EMI. So like that they have built the properties. Okay. Or for capital appreciation, people generally who invest in stock market, they invest for capital appreciation. That okay, this stock is today for 100 rupees. Long, I mean, after 5 years, I'm expecting it to be, let's say 5,000 rupees. Or this stock is today right now 100. Within a month, it will become 120. So in 1 month, 20% interest. So we will buy that. So all this are your investment. Now, anything held as stock in trade is not your inventory. I mean, not your investment. Okay. Even you're holding shares as stock in trade. Now, what do you mean by shares as stock in trade? Like if you're holding shares and you're a trader, okay, your main business is to trade in your business, shares and debentures and all. So that share will become your inventory, but that is not investment. Fair value. Now, fair value is the amount for which asset could be exchanged between. Now, this is very important. Knowledgeable, willing buyer, and knowledgeable, willing seller. Right. So, knowledgeable, willing buyer. The person who is going to buy that asset, he should be knowledgeable and willing. ये दोनों में फर्क क्या है? एक, if I come to Bangalore and let's say in JP Nagar I found a 2 BHK property and I go there and I quote कि ये पूरा 2 BHK जो है 1200 square feet I'll give 100 rupees. I'm not a willing buyer. इतना अमाउंट कम आप कोट करो कि सामने वाला बोल दे कि भाई ये 100 रुपए में बाहर जो चप्पल पड़े हैं वो भी नहीं आएंगे फिर भी तुम्हें मारेंगे हम उससे. Willing buyer or knowledgeable. I do not have any knowledge about property, stock, I mean the current market price in this area, और मैं randomly उसको quote करता हूँ. Okay, so that price is cannot taken also can also not be taken as fair value. Knowledgeable and willing दोनों होना चाहिए. And same applies to seller, and that too at arm's length transaction. Now, what do you mean by arm's length transaction? Arm's length transaction means without any undue influence, right, or any other thing. Like, अगर मान लो कि some goon, some gunda who comes to my flat and he ask कि सर ये आपका जो फ्लैट है 25 लाख में दे दो. ओके, तो मेरे को सेल तो करना है. आई एम इन डिफिकल्टी. ठीक है, बट I am knowledgeable, willing buyer. He is knowledgeable, willing buyer. I am knowledgeable, willing seller. But then he put gun on my forehead and said that you signed property paper for 25 lakh. Is it an arm's length price? No. फिर कल को मान लो कि भाई मेरे घर में कुछ इमरजेंसी है. ओके, आई नीड टू गेट ऑपरेटेड और मुझे अर्जेंट में निकालना है. Like to be honest, if I tell you, when I was looking to buy a property, I saw two flats. Okay, so the person, the owner of second flat, he said, "Sir," he quoted a higher amount, and then I was like, "Sir, that is not the budget for me, so I think I may not buy." After I agreed and after I signed document for this property where I'm staying right now, he again called and he's like, "Sir, I'm willing to sell at even a lesser price. The only reason I'm telling you is I have bought a new property somewhere else and I need to make payment. That's why I'm just selling this property." He is having a knowledge, right? I am also having a knowledge that what are the rates prevailing in this area, right? He is willing seller, I am willing buyer.
but the price probably I may pay is not the arm's length transaction. Okay, so if you are selling anything under distress is not a fair value. Okay, and under appropriate circumstances, market value or NRV provides evidence of fair value. What do you mean by this market value? If you are having gold, silver, right, or any shares, debentures which are quoted where the market value is available, so that is a fair value. What is market value? A amount obtained from the sale of investment in open market, net of expenses necessary to be incurred before disposal. That is what. If you remember, while studying investment chapter, we have discussed that any brokerage or fees to be reduced from the sale of investment. Right? It is because of this only. Now, ICI is not that much keen on asking this, but अगर मुझे पूछा जाए तो probably I may ask questions on this. Non-applicability. It does not serve basis of recognition of interest, dividend, rental on investment which are covered by AS9. So AS9 is revenue recognition. AS9 tells you that how to recognize any revenue. It can be interest, it can be dividend, or it can be rent, anything. So investments do not tell you that how to recognize interest, how to recognize dividend. Investment tells you how to recognize investment. Then operating or finance leases. For that, you have already AS19. Then investment on retirement benefit plan, life insurance company. That is also not applicable. Then mutual funds, venture capital funds, or the assets management companies, banks, etc. Right. So here, some of you may think that, sir, if I am making SIP, systematic investment plan in mutual funds, then this AS is not applicable. The answer is no, AS is applicable. AS is not applicable to mutual fund houses. So if let's say there is one mutual fund house, let's say ICICI Prudential mutual funds. Okay, we have SBI mutual funds. So this investment AS is not applicable to mutual funds. It is very much applicable to the investments in mutual funds. ये दोनों में कुछ डिफरेंस याद रखना है. कौन कौन से फॉर्म होते हैं इन्वेस्टमेंट के? फिजिकल फॉर्म जो अभी ये है लैंड बिल्डिंग गोल्ड एक्सेट्रा. फिजिकल अब तो गोल्ड सिल्वर आपको ईटीएफ में मिलते हैं, ऑनलाइन डिजिटल में मिलते हैं आपको, राइट. एंड विदाउट फिजिकल फॉर्म जो डीमेट में आपको मिलते हैं, दैट इज shares, debentures, right? Even now, we have digital gold, digital silver, right? All these digital assets. Bitcoin भी है अभी तो, right? Now, for some market value is derived from an active market. एक्टिव मार्केट कि भाई कंपनी होगा लिस्टेड वाली कंपनी जिसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं. एंड इफ एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, तो अदर मीन्स आर यूज्ड. अब उसका फिर वैल्यूएशन निकालेंगे हम लोग. जैसे कि आप देखते हो शार्क टैंक वगैरह, तो शार्क टैंक में वो जाके बोलता है कि हमारी कंपनी है. ऑब्वियसली इट्स नॉट लिस्टेड, राइट. इट्स नॉट लिस्टेड कंपनी. बट देन जैसे हमारा इतना टर्नओवर है, हमारे पास इतना एम्प्लॉइज है, हमारा ग्रोथ ये है, बेस्ड ऑन दैट दे आस्क फॉर फंड्स. अब क्लासिफिकेशन, ये हमने थोड़ा बहुत शायद देखा था एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. दो क्लासिफिकेशन होता है. करंट इन्वेस्टमेंट. व्हाट डू मीन करंट? करंट मतलब शॉर्ट टर्म में होगा. इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय इट्स नेचर इन रेडिली रियलाइजेबल. ओके, रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड, ये मेन है, इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड. तो अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं आज 13 दिसंबर को, और मेरा इंटेंशन है उसको बिफोर 1 year सेल कर देने का, तो वो होगा जनरली करंट इन्वेस्टमेंट. इंटेंशन मैटर करता है, राइट. एंड द इंटेंशन टू होल्ड फॉर मोर देन 1 year इज टू बी जज एट द टाइम ऑफ परचेस. ये जब परचेस करेंगे तब उसको जज करना है कि भाई तुम्हारा इंटेंशन क्या है. और लॉन्ग टर्म द क्यू डेफिनेशन विच इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? मतलब आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज एनी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग. इट इज जनरली अज्यूम्ड टू बी लॉन्ग टर्म. कॉस्ट इज जनरली कैलकुलेटेड एज पर मॉडल गिवन इन AS10. अब AS10 क्या है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. वहां पे आपको बताया गया है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करनी है. एंड
if any shares of some housing or cooperative society is held for occupying property, then cost of such shares are added to the cost of investment property. अब ये क्या होता है? Recently one of my known has purchased one flat in Ahmedabad. अब वो अहमदाबाद में जो पूरा फ्लैट है वो एक सोसाइटी में है. ओके, दे हैव सम 200-250 फ्लैट्स इन दैट. सो द सेलर हैज सोल्ड इट एंड देन ही सेड, सर काइंडली मेक पेमेंट ऑफ 25,000 फॉर मेंबरशिप फी. नाउ माय कलीग, माय नोट, ही वाज लाइक, सर व्हाई 25? इज लाइक, इट्स अ मेंबरशिप फी. You pay it to the society, so they will release my membership fee. So membership fees are compulsory to be paid by the owners. Membership fees are compulsory to be paid by the owners. तो वो ओनर के नाम पे ही जाता है एंड इट इज कंपल्शन विदाउट बिकमिंग मेंबर. जैसे कि आपने एक हिंदी सीरियल देखा होगा सब टीवी पे, गोकुलधाम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. इन दैट दे हैव गोकुलधाम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो वहां पे गोकुल धाम में जिसका जिसका भी घर होगा, दे हैव टू बी द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, आई मीन कॉर्पोरेट सोसाइटी, और उनको उनके शेयर लेने पड़ेंगे. तो वो शेयर, दीज आर द इंसिडेंटल कॉस्ट टू द एक्विजिशन ऑफ दैट बिल्डिंग, तो वो उसमें ऐड कर देंगे. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछे. नहीं? ओके, तो आगे चलते हैं. व्हाट डू मीन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? Cost of investment includes incidental acquisition costs such as brokerage, fees, duties, etc. वो सब इसमें ऐड होगा, राइट? If investment is acquired or partly acquired by issue of shares or other securities, then its cost will be the fair value of security issued. अब ये क्या हुआ? मान लो मेरे पास रिलायंस के कुछ शेयर्स हैं. हाँ, मान लो कि आई हैव कितना, 10, 100, 1000. ठीक है, इमेजिन आई हैव 1000 शेयर्स. 1500 रुपये उसका एवरेज प्राइस है अभी मार्केट में. तो जब मैं आपको वो दे रहा हूँ और आपसे एक बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, ठीक है, या एक फ्लैट खरीदा मैंने, तो वो फ्लैट का वैल्यू कितना होगा? आपका 15 लाख रुपए. कैसे? बिकॉज आई एम गिविंग यू समथिंग वेयर द मार्केट वैल्यू इज रेडी अवेलेबल. ठीक है. इफ द वैल्यू ऑफ, if it is acquired in exchange of some other asset, then the cost of investment will be the fair value of asset given up or fair value of investment acquired, whichever is more clearly evident. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास कार है और मेरे पास एक बाइक है. आपके पास एवरेज कार कोई, मान लो समझ लो कि अल्टो या वैगनार कोई ऐसा कार है, ठीक है, और मेरे पास एक टू व्हीलर है, लेट्स से रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650, विच इज एक्सपेंसिव. ओके, तो मैंने बोला यार बहुत हैवी गाड़ी है, नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो एक फोर व्हीलर मिल जाता है मेरे को सेकेंड हैंड. और आप क्या बोलो, बैंगलोर में फोर व्हीलर इज पेन, आई डोंट वांट दिस. ये लेके तुम, आई एम प्लानिंग टू बाय सुपर बाइक, और जिससे मैं कहीं दूर जाना होगा तो भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता हूँ. मैंने बोला ठीक है, तुम मेरा मीटियोर 650 ले लो एंड यू गिव मी योर जेन अल्टो या जो भी कोई कार है. ठीक है, तो अब आपका भी वो इन्वेस्टमेंट था, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है. अगर हम दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपके लिए उसका वैल्यू क्या और मेरे लिए उसका वैल्यू क्या? तो दोनों में से जो मोर क्लियरली एविडेंट होगा वो लेना चाहिए. अब ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मोर क्लियरली एविडेंट. तो इसमें जनरली हम एक ही चीज लेते हैं, व्हाट इज दैट, कि मेरे लिए जो मैंने दिया वो एविडेंट, आपके लिए जो आपने दिया वो एविडेंट, बिकॉज आई नो माई मीटियोर्स वैल्यू एंड यू नो योर कार्स वैल्यू. तो जो आपको लगता है कि आपका कार का वैल्यू है, आप मीटियोर को उससे रिप्लेस करो. मुझे लगता है जो मेरा मीटियोर का वैल्यू है, आई विल रिप्लेस कार विद दैट, राइट? एनी प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट रेंटल शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये क्या होता है प्री एक्विजिशन? अब जब भी आप, मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, भावेश सर के पास एक फ्लैट है, ठीक है, अब उनको सेल करना है एंड देयर इज ऑलरेडी अ टेनेंट इन स्टेइंग इन दैट. तो भावेश सर ने पूछा कि सुनील सर, ये मेरा फ्लैट है और आई बी चार्जिंग लेट्स से 50 लाख फॉर दैट. मैं से ठीक है, एंड इट्स अ लमसम अमाउंट, डन. मैंने बोला कोई बात नहीं. अब वहां पे एक टेनेंट है अभी, जिस जो मंथली रेंट देता है 20,000 रुपए, 20. ओके, बट फ्रॉम लास्ट 3 months ही डिड नॉट पे 20,000 रेंट.
फॉर 3 months he has not paid. Why he has not paid? पैसा नहीं है उसके पास, नहीं है उसके पास, पैसा तो है, बट भावे सर के साथ उसका अग्रीमेंट ऐसा था कि ही विल पे हाफ ईयरली रेंट। तो जब वो 120 होगा तो एक साथ दे देगा। अब भावेश सर ने तो बोला कि सर ये 50 लाख रुपीज इंक्लूडिंग ऑल दिस। अब वो टेनेंट थोड़ा डर रहा है। ही इज लाइक सर विल यू स्टे हियर, मेरे को कब खाली करना है। मैंने बोला नहीं भाई, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर मी एंड मेरे को रेंट पे ही देना है, तो इफ यू आर स्टेइंग हियर, इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू विद द सेम रेंट 20,000 रुपीज। ही इज लाइक फाइन। अब भावेश सर ने क्या बोला कि सुनील सर ये ऑलरेडी अक्रूड रेंट है, आई डोंट वांट इट, यू टेक इट। इसका मतलब भावेश सर हैज इंक्लूडेड दिस in that. So what is the actual cost for me for this flat? 49 lakh 40,000। अगर कोई ऑलरेडी अक्रूड रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो इंक्लूडेड है तो हमें माइनस करना चाहिए। दोज हु हैव कंप्लीट, आई मीन नॉट कंप्लीटेड बट डिड इन्वेस्टमेंट चैप्टर, आपको याद है ऐसा कुछ आता था, कम इंटरेस्ट, व्हाट डू मीन कम इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कंपोनेंट, है ना। तो यही है। If shares are acquired on come right basis and right is sold in the market, then sales proceed from that right issue should be utilized to set off the loss when shares become exercised. इसके लिए ऑलरेडी हमने एक अच्छा सा डिस्कशन किया होगा। हम्म, हमने एक अच्छा सा डिस्कशन किया होगा। कौन सा, कहाँ गया, शुड बी देयर ना, यहाँ पे नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ ये। If you remember, we have done this particular entire chart that Mr. A purchased 1,000 shares of Amlani Limited, ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। एंड प्रोबेबली इसका कोई क्वेश्चन शायद ही इसमें आएगा। तो सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट, यू शुड नॉट बी वरिड, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन डूइंग इट दिस अगेन। आपका जब इन्वेस्टमेंट चैप्टर करेंगे तो उसमें ये हो जाएगा साथ में, राइट। तो अभी वेस्ट नहीं करते टाइम। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एक ये और ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दिस कॉस्ट थोड़ा बहुत। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को बुक में कैसे कैरी करोगे आप? तो इट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा। एनी रिडक्शन इज डेबिटेड टू पीएनएल। मतलब आपका कॉस्ट 100, फेयर वैल्यू 90, तो 10 पीएनएल में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। जो हम करते हैं इन्वेस्टमेंट चैप्टर में। ये अच्छा पॉइंट। इफ वैल्यू इंक्रीजेस सब्सिक्वेंटली then it is permitted to increase it up to cost, that is whatever is reduced earlier to that extent। बट सर प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो आप? अभी मेरा कैरिंग अमाउंट क्या है भाई, 90, मान लो फिर फेयर वैल्यू हो गया 95। हम कंपेयर किसको करते हैं, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। दैट मीन्स आई हैव टू कैरी इट एट व्हाट 95, बट अभी इट इज कैरीड एट 90, यू कैन क्रेडिट ₹5 टू पीएल। ये समझ में आ रहा है? Sir, can you repeat this point? See, I bought one investment for 100 rupees. I close my books and it is book value is 90, right? I mean, market value is 90. So I value it at 90 and 10 rupees is a loss. I will transfer to PNL. Up my investment is carried in my books at what value? 90 rupees. Okay. Now, how much is my next time when I close my books? What is the market value? 95. अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, मतलब
90 and 95 you should not compare. You have to compare original cost of 100 and 95. Which is lower? 95. But investment is right now carried in my book at 90. Fine. 5 rupees is the profit that you can book in your P&L. Okay, sir. Then, long term investments. These are generally valued at cost. If there is any decline other than temporary, then such decline is charged to P&L. जैसे मैंने बताया आपको कि भाई आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा है जो 100 रुपए का था पहले, अब उसका वैल्यू हो गया 10 रुपीज, 90% गिर गया भाई. हैव यू एवर हर्ड एनीवन सेइंग दैट इन स्टॉक मार्केट 90% तो अप डाउन चलता रहता है? नो, इट्स अ ड्रास्टिक लॉस, राइट? तो आपको वो लॉस बुक कर देना चाहिए. एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज अदर देन टेम्पररी कैन बी रिकॉग्नाइज इन P&L टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस अर्लियर डेबिटेड. अदर देन टेम्पररी कुछ है तो वो भी आपको बुक करना चाहिए. जैसे कि 26 जनवरी 2001, तब तुम लोग थे भी नहीं. 26 जनवरी 2001, कुछ लोग के तो मॉम डैड की शादी भी नहीं होती. हाँ. सो दैट डे वी हैड अ वेरी बैड एंड of high magnitude one earthquake, right? We had one earthquake of very high magnitude. बहुत सारा नुकसान हुआ. बिल्डिंग गिर गया एकदम. Some of the buildings were directly like went into the what you can say land. खत्म हो गया एकदम. ध्वस्त पूरा. अब people are scared of buying buildings, flats. They are like, sir, छोटा मकान होगा बट अपना होगा. आई विल बाय टेनामेंट ओनली, आई डोंट वांट टू बाय बिल्डिंग. करेक्ट. ये उनका था, फ्लैट नहीं लेना उनको. तो दोज डेज द मार्केट ऑफ फ्लैट, द रियल एस्टेट मार्केट हैज क्रैश्ड लाइक एनीथिंग. फिर उनका यही था कि भाई अगर हम गए बिल्डिंग में, फ्लैट में, एंड अर्थक्वेक आया तो हम मर जाएंगे. बट दे डोंट नो कि भाई इफ यू गो फॉर बाइंग अ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट हाउस, तुम इंटरेस्ट भर भर के मर जाओगे बैंक का. तो आफ्टर 3 years 5 years अगेन थिंग्स बैक टू नॉर्मल. हाँ, थिंग्स गॉट बैक टू नॉर्मल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 26 जनवरी 2001, फाइनेंशियल ईयर 2001 चल रहा था, तब आपके इन्वेस्टमेंट में ड्रास्टिक रिडक्शन होगा. तो वो टेम्पररी नहीं है, उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चलेगा. बुक दैट लॉस. वंस द मार्केट स्टेबलाइज आफ्टर 2 3 4 5 years, बुक दैट प्रॉफिट अगेन. ठीक है. और वही बोला, नहीं सब्सिक्वेंट इंक्रीज should be recognized in P&L. Examples of decline other than temporary. Company in which investment is made making cash operating losses. ये एग्जाम में भी आता है. New regulation which has negative impact on the working of investee. Significant reduction in quoted price of investment. ये भी आता है एग्जाम में. Disposal of investment. इन्वेस्टमेंट को कैसे डिस्पोज करना चाहिए? Whenever you are disposing any investment, difference between the carrying amount and the disposal proceeds, net of expenses, is to be recognized in P&L. जितना भी डिफरेंस होगा आपका नेट ऑफ द एक्सपेंस डिस्पोजल का, उसको कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट से डिफरेंस लो, दैट शुड गो टू योर P&L. बट इन केस पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, then its average carrying and its carrying amount should be calculated by taking average. यहाँ पे बोला गया है आपको कि इन्वेस्टमेंट आपको एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए. नेक्स्ट, रिक्लासिफिकेशन. मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिक्लासिफिकेशन? सर, रिक्लासिफिकेशन का मतलब होता है मन बदल जाना. मतलब पहले आपने इन्वेस्टमेंट लिया था सोच के कि शॉर्ट टर्म में लेना है, मार्केट वार्केट गिर गया, आपको वो ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म हो गया. और लेट्स से सम कंपनीज आर गुड, सो यू थिंक कि नहीं नहीं हमको लॉन्ग टर्म जाना है. ठीक है, हमको लॉन्ग टर्म जाना है, तो प्रोबेबली आप उसको कन्वर्ट करोगे. या फिर सम इन्वेस्टमेंट यू बॉट विथ अ विजन ऑफ कीपिंग लॉन्ग टर्म, बट आप उसको आप शॉर्ट टर्म में ही निपटाना चाहते हो. तो ध्यान रखना,
व्हेन यू आर डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, ये सबसे बकवास चीज है। व्हेन यू आर डूइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, ट्रांसफर टू बी मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड सीसी, एल टू सी और सी, एल टू सी और सी, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये जिसने भी बनाया बेवकूफ आदमी है। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी भी आप कॉस्ट से ज्यादा कैरिंग अमाउंट लिख ही नहीं सकते हो। इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट ओनली। ठीक है? तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट आपने 5 लाख का खरीदा है, तो देर आर चांसेस कि उसका वैल्यू 5 से कम होगा, बट 5 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो कैन आई से द बुक वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट दोनों में, आई मीन कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट दोनों में से कम क्या होगा? कैरिंग अमाउंट ही होगा। या तो इक्वल होगा या तो कम होगा। इंपॉर्टेंट ये है, करंट टू लॉन्ग टर्म, C2L, इट्स लोअर ऑफ कॉस्ट और FMV। C2L, सी और FMV। डिस्क्लोजर फालतू चीज है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी, कितना करंट इन्वेस्टमेंट, कितना लॉन्ग टर्म, कितना कोटेड, कितना अनकोटेड, अब दोनों में फर्क क्या है? मैं बोलता हूँ मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, उसमें से लॉन्ग टर्म 40 लाख, शॉर्ट टर्म 10 लाख। अच्छा, 50 लाख में से कोटेड कितना? 25 लाख। अनकोटेड कितना? 25 लाख। ये भी हो सकता है ना? हम्म। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सिंस इट्स कोटेड, उसका मार्केट वैल्यू पता होगा आपको। फिर यही प्रॉफिट लॉस सेल ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट in investment account and income earned by way of whatever it is, gross amount of income should be stated। मतलब वही राम कहानी लिखनी है उसकी। any significant restriction on right of ownership, realizability of investment, or the remittance of income and proceed disposal। मतलब अगर आपने फॉरेन कंट्री में मकान लिया है, तो उन्होंने बोला कि भाई इफ इन आर कंट्री एनी फॉरेन नेशनल्स आर बाइंग द प्रॉपर्टी, दे हैव टू कीप इट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। तो लॉक इन हो गया आपके लिए, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। और एनी अदर डिस्क्लोजर। इसमें कहीं पे कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। सर इन्वेस्टमेंट्स में लैंड भी आता है ना? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो उसका कैरिंग कॉस्ट, सॉरी बुक वैल्यू। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट और सॉरी, कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम ही रहेगा ना? मतलब उसको कभी बढ़ाते नहीं है क्या? नहीं, मान हम लीजिए जनरली दस लैंड को पंद्रह साल बढ़ाना प्रेफर नहीं करते। अच्छा। सर कोटेड अनकोटेड मतलब? कोटेड, जिसका प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, वो कोटेड। जिसका मतलब प्राइस जैसे मार्केट शेयर में के अवेलेबल जैसे। नहीं है, जैसे कि रिलायंस का शेयर कोटेड, बट आपका बिल्डिंग अनकोटेड। अच्छा, ओके सर, अंडरस्टूड। सर वो रिक्लासिफिकेशन वापिस समझा सकते हैं? हम्म। देखो, रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका मूड बदल गया भाई। हम्म। पहले आपने सोचा था, जैसे कि अब मुझे बताओ, तो आई थॉट कि भाई आई विल बाई वन शेयर्स। जैसे कि अभी IPO आया NSDL का, ठीक है? तो NSDL का IPO जब मैंने सब्सक्राइब किया था और मुझे अलॉट हुए शेयर, तो एट दैट टाइम आई हैड एन ओपिनियन कि भाई मैं उसे शॉर्ट टर्म में रखूंगा, या तो लिस्टिंग के टाइम में बेच दूंगा, या शॉर्ट टर्म पे रख के फिर बेचूंगा उसको मैं। बट आफ्टर कीपिंग इट फॉर 6 मंथ्स, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा शेयर है। नाउ आई वॉन्ट टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। या तो बेटी का 10th का फीस भरेंगे इसमें से, या तो शादी कराएंगे। मतलब मेरा क्या हुआ, इंटेंशन चेंज हो गया अभी। सिमिलरली, आई बॉट वन कंपनी शेयर, से फॉर एग्जाम्पल HDFC। मुझे लगा अरे HDFC जैसी कोई कंपनी ही नहीं है, ऐसी कोई बैंक नहीं है, मुझे तो उसको 10 साल रखना है। बट देन आई रियलाइज कि अरे उसमें कुछ लफड़ा आने वाला है, या लफड़ा आ रहा है, मार्केट प्राइस गिर रहा है। मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, मेरे को तो इसको 6 महीने में निकाल देना है। क्या हो गया? इन्वेस्ट, अपना इंटेंशन चेंज हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, करंट टू लॉन्ग टर्म, तो जिस दिन आप ये डिसाइड कर रहे हो, उस दिन का आपका कॉस्ट और उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा वो आपको लेना है। कॉस्ट है आपका 80,000, फेयर मार्केट वैल्यू है 90,000, यू टेक इट 80। कॉस्ट 80,000, मार्केट वैल्यू 25,000, टेक इट 25,000। और अगर लॉन्ग टर्म से करंट में आप शिफ्ट करते हो, लॉन्ग टर्म टू करंट,
तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे कि भाई उसमें जो भी आपका बुक वैल्यू है वही कांस्टेंट रहेगा। यहाँ बोलते हैं कॉस्ट और बुक वैल्यू और करंट मार्केट आई मीन कैरिंग अमाउंट विच इज लोअर। बट एक सीधा बात है, कोई भी चीज आप कॉस्ट से ज्यादा लिख नहीं पाओगे। तो एट द मोस्ट वो प्राइस जो कैरी कर रहा है वो क्या होगा, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट से कम, मतलब जो कैरिंग वैल्यू है वही कंटिन्यू करनी है आपको। ओके सर। डन। हाँ। क्वेश्चन है ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन ही होंगे शायद इसमें। बस 7-8 क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी 2-3 minutes, right? I'll just fetch water and come. चलिए, इसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट मिलेंगे आपको। एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब तो पहली बात दो चीज, एक तो कोटेड नहीं है, मेन है मेरा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, इज कैरिड इन द बुक एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख, 2 लाख का कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म है। तो जब ये इंफॉर्मेशन आए आपके दिमाग में कॉस्ट का मॉडल आ जाना चाहिए वैल्यूएशन का, कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली कैरिड एट कॉस्ट ओनली, राइट? बट इफ देर इज एनी डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू विच इज नॉट टेम्पररी इन नेचर, देन we should provide for it. The published account of unlisted company received in May showed that the company was incurring cash losses, जो उसमें बोला था, एक आपको हिंट दिया था, with a declining market shares and the long term investment may not fetch more than 20,000. How will you deal with this? तो कोई बात नहीं, ये 2 लाख को हम 20 पे लेके आएंगे। क्यों? बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, तो 2 लाख पे होना चाहिए। बट सी द मार्केट वैल्यू, the expected realizable value is only 20. The market value has fall by 90%. 90% कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, many of you will have that question as well कि सर कौन सा परसेंटेज टेम्पररी माना जाता है? जनरली 10-20% वो आप टेम्पररी ले सकते हो, बट ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है।
तो इफ ICI wants to ask question on डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, तो वो एक बड़ा अमाउंट ही देंगे आपको, राइट, समवेयर अराउंड 50 और मोर, ऐसे ही कुछ देंगे आपको। बिकॉज अगर कोई शेयर्स का वैल्यू 50% गिर गया है, मतलब कोई था पहले 200, 200 से अब 100 हो गया है, 100 से अगर 200 वापस जाना है तो उसको 100% इंक्रीज होना पड़ेगा उस लेवल से, है ना। सो दैट्स वाई उसको हम लॉन्ग टर्म ही बोल सकते हैं, मतलब परमानेंट डिक्लाइन। तो बस यही क्वेश्चन का आंसर है। हम्म तो ये यहाँ पे लिखा है 20,000 इन फिनांस स्टेटमेंट। फिर A Limited on 1120 made investment of 600 lakhs in the equity shares of B Limited, of which 50% is made in the long term category। अच्छा, तो जो 600 है आपके पास, उसमें से 300 लॉन्ग टर्म है, तो बाकी का 300 क्या होगा भाई? करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। रेस्ट एज टेम्पररी, टेम्पररी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट 31 मार्च बिकेम 200 लाख। अच्छा, ये पूरा 600 लाख है वो 200 हो गया, मतलब इसका वैल्यू हो गया 100, इसका वैल्यू भी हो गया 100, बाकी सब तेल लेने गया। आई नो ये तो 100 पे ही होगा, बिकॉज करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, तो यही होगा। बट लॉन्ग टर्म में एनी डिक्लाइन विच इज नॉट टेम्पररी इन नेचर, अब इसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा टेम्पररी है कि नहीं है। बॉस 300 से 100 हो गया, मतलब 2/3 वो चला गया। अब इसको वापस कॉस्ट पे आना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 200% बढ़ना पड़ेगा, 100 भी नहीं, 200% बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये भी क्या है? डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी। बॉस बुक करो, सबको बुक करो। हम्म सो इन द गिवन सिचुएशन realizable value came 200 lakh, that is 100 lakh in respect of current and 100 lakh for long term। अच्छा, तो यहाँ क्या बोला है? कैरिंग मार्केट वैल्यू हेल्ड एज टेम्पररी इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन एट अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 100, करेक्ट। एंड लॉन्ग टर्म में भी क्या बोला है? सी, फॉर long term investment when there is a decline other than temporary, then it should be reduced to recognizable value। तो B Limited has lost the case, जो भी है, and accordingly it will be appropriate to reduce the carrying amount of long term investment by 200 lakh and show the investment at 100 lakh as the downfall in the value of shares, not temporary। तो पूरा का पूरा आपको बुक करना चाहिए। फिर ये 5 मार्क का आया हुआ है सिमिलर लाइन पे शायद, नवंबर 22। अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, अच्छा वापिस ये लॉन्ग टर्म है, in the shares of Rachel Limited is carried in the books of Ziva Limited at a cost of 1 lakh। Okay. The audited statement of Rachel Limited received in May showed that the company had been incurring cash losses। See, जो मैंने पहला क्वेश्चन वहां करवाया सेम टू सेम वही है, और 55,000, तो भी 45% उसको वापस करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट डबल ही होना पड़ेगा, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। सी, the provision of diminution amounting to 45,000 should be made। फिर दूसरा क्या है? On 1st December 21, Ziva Limited made investment of 5 lakh in 4,000 equity shares of Gary Limited at a price of 125 with the intention to hold it for not more than 6 months। मतलब ये क्या है? Current investment। In the first week, Gary Limited suffered heavy loss due to earthquake and the loss was not covered by insurance company। तो shares is quoted at a price of 80। हमने कितने में लिया था भाई? 125। ये कितना हो गया? 80। तो we will value it at 80 into 4,000 shares, 320। बात खल्लास। ये टेम्पररी है या नहीं है मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता। अरे चिंकू पिंकू, तुमको समझ में आ रहा है ना भाई?
Can you explain once more? See, again, short term investment, current investments are to be valued at which price, cost, or fair market value, whichever is lower. Right. Here they have given that the company where we invested suffered loss due to earthquake or what. Even we are not we are least bothered with that. We are not bothered. Okay. If I have bought it for 125 on the last day, if the market value is 123 also, I will record it at 123. Here it is at 80 rupees. Fine. Any reduced value we will take into consideration. Okay, sir. Yeah. Mr. Mohan has invested some money in various mutual funds. यहाँ पे बच्चे लिख के आते हैं AS13 इज नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड। अरे बाबा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड को एप्लीकेबल होता है। अब हमें 31 मार्च 21 पे डिसाइड करना है। पहले तो ये डेट ऑफ परचेस, ये ऑलरेडी 4 साल पुराना है, तो ये लॉन्ग टर्म ही हुआ, राइट। परचेस ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी, मतलब ये कॉस्ट हो गया 50,220। मार्केट वैल्यू ये है। तो अगर हम इसको अदर देन टेम्पररी माने तो इसको लेंगे, अदरवाइज 50,220। फिर 5 अगस्त 2020, अब ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म वाले हैं, 1 साल पूरा नहीं हुआ। तो कॉस्ट 25,000 दिस नहीं, हम इसको ले लेंगे। 75 यस, तो हम इसको लेंगे और हम इसमें इसको लेंगे, मतलब 3 मार्केट वैल्यू ये। या फिर अगर ये टेम्पररी है, इसका डिफरेंस भी कुछ 2,000 रुपये, 4-5% है, तो वी विल कंटिन्यू टू टेक इट एट दिस वैल्यू। देखा, ये 50,220, राइट, ये वैल्यू यहाँ पे ये कम दिख रहा है ना जी, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे 3 में ये कम है, कॉस्ट 75,375, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू। तो आपका इन्वेस्टमेंट ये प्राइस पे बुक में जाएगा। ये वाला समझ में आ रहा है? सर पहले वाले में 50,000 वाला क्यों लिया? 50,220 लॉन्ग टर्म है ना बेटा, और लॉन्ग टर्म है तो हम क्या करेंगे कि इट हैज टू बी अ डिक्लाइन विच इज सिग्निफिकेंट। अब 50,000 से 48,000 होना, मतलब वो कितना हुआ लॉस? 1% लॉस भी नहीं हुआ, आधा परसेंट लॉस इज तो टेम्पररी नो। अच्छा, उस हिसाब से। ओके, हाँ, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन टाइप है। ये वाला, मतलब इसमें तो आईएमपी करके लिखना भी क्या, गिन के 8 क्वेश्चन है। तो और देखो आया हुआ भी है 20 में। इनोवेटिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड invest in shares of another company on 1st October 2013 or 23 at a cost of 250. It earlier purchased gold of 4 lakh and silver of 2 lakh on 1st March 2001. तो आज का दिन कौन सा है भाई? 31st March 2004. Can I say gold and silver they are holding for more than let's say a year or what? This can be long term. अब मार्केट वैल्यू 225, देखो ये कटा है 10%, ये दोनों तो इंक्रीज है। वी परचेज गोल्ड फॉर 4 लाख, नाउ इट्स 6 लाख, सिल्वर फॉर 2 लाख, नाउ इट्स 3.5 लाख। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर तो वही 4 and 2 लाख पे वैल्यू होगा? बिकॉज इट कैन नेवर बी शोन एट मोर देन कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव इट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड अभी तो कितना टाइम हुआ है? 6 महीने ही हुआ है, तो यहाँ पे इंटेंशन क्लियर नहीं है। तो आप 2 तरह से आंसर लिख सकते हो इसका। आंसर नंबर 1 कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 year एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड, सो वी आर अज्यूमिंग इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन नेचर, एंड anyways it is having net realizable value more than the cost price, so it should be valued at cost price, respectively 4 and 2.
अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई फॉर शेयर्स it's only 6 months right now to the balance sheet date. So if the intention is to hold it for a longer period of time, then probably we can continue to hold it at the same value, 2,50,000. No doubt, market value is less, but it is just 10%. It is how much? Just 10%, 25,000. 10% can be regarded as temporary loss. तो प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एज करंट इन्वेस्टमेंट तो उसको 225 पे ही लेना चाहिए, है ना. एक बार एक इसका आंसर आप पढ़ो ना. आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट गो थ्रू दिस वंस. इतना ही है. हुँ? Sir, this provision for diminution is about what? हाँ. Provision for diminution. हाँ, provision for diminution is nothing but decrease in the value, no. जब market value is lesser than the cost price, so we create a provision. Sir, but it is for temporary or No, no, no. Provision is always for other than temporary. Because the provision we do, that option is given only and only for long term. शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन ही नहीं है. शॉर्ट टर्म के लिए तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ही घटाओ. okay. एक बार हो जाए तो मुझे बताना. चलिए.
अभी आगे एबीसी लिमिटेड, मैंने बोला ना यही टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आते हैं, रिपीटेड। wants to reclassify investment in accordance with AS13, okay, a portion of current investment C2L, जब C2L जाओगे तो क्या होगा, cost और FMV on the date of transfer, purchase for 20 lakh, okay, to be reclassified long term, okay, as the company decided to retain them, market value 25, कभी ज्यादा दिखा नहीं सकते, तो will be valued at 20, कहाँ गया 20, another portion of current, again cost or fair market value, purchase for 15, okay, reclassified as investment, long term investment, market value 6.5, we'll go with 6.5, ठीक है, बाकी का पीएनएल में चार्ज कर दो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट L2C, C और C, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू इज नो लॉन्गर रिलेवेंट, holding purpose to be reclassified, the original cost 18 lakh but written down to 12, तो 12, carrying amount is 12, खत्म। फिर 5 मार्क के लिए सिमिलर कॉन्सेप्ट वही है, रिक्लासिफिकेशन। ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट wants to reclassify investment in accordance with AS13, लॉन्ग टर्म, अच्छा L2C, तो C और C, right, costing 8.5 lakh for company A to be reclassified as current, it has reduced the value of investment to 655 lakh and to recognize the other and temporary decline। देखो जिसने बनाया स्मार्ट है, इसने फेयर वैल्यू भी दिया है, बट फेयर वैल्यू यहां पे रिलेवेंट नहीं होगा, तो विल कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर 8.5 6.5 सॉरी। फिर आप इस लॉन्ग टर्म बी कॉस्टिंग 7 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट, फेयर मार्केट वैल्यू से मतलब ही नहीं है, बुक वैल्यू 7, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच इज लोअर, तो आपका 7 और 2 सॉरी 7 और 7 इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो वाला 7 लिख सकते हो। 7 थोड़ा फॉर रीजन, 7 लाख ओनली। करंट, भाई मेरे को पता है करंट टू लॉन्ग टर्म जाएगा तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज लोअर लाएगा, तो कॉस्ट 10 लाख है टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड द मार्केट वैल्यू कितना है भाई 12, मार्केट वैल्यू गया तेल लेने, कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं, एट 10 लाख, डन, वेरी सिमिलर, वेरी, ये देखो PYP 19 में आया था, 21 में आया है शायद में, है ना। ओके, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, Z बैंक हैज क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट, नॉट एप्लीकेबल, क्यों, AS13 डज नॉट अप्लाई टू बैंक, ये फालतू चीज है, हेल्ड फॉर मेच्योरिटी, हेल्ड टू मेच्योरिटी ऑल दैट, खत्म। डन, अरे कोई डाउट होके चले गए, नहीं सर। हाँ तो बस तो खत्म, एक बार वापस गो थ्रू कर लेना, कुछ है नहीं इसमें, डन। Yes, sir. तो Yes, दैट्स sir. व्हाई आई एम नॉट लिविंग एनी टॉपिक लाइक इन बिटवीन, है ना। आज ये हो गया 2 AS आराम से, बाकी देखेंगे आगे कुछ करना है तो, ठीक है। Sir, will you continue cost accounting from Monday? नो 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 नो, नाउ फ्रॉम टुमारो आनंद सर विल टेक कॉस्ट अकाउंटिंग, Part 1 book, right? हाँ जी हाँ जी, पार्ट 1 बुक, ठीक है। Okay, sir. सो अभी आनंद सर, दैट्स द रीजन, क्योंकि अभी मैं कल या फिर अगर एक दिन आनंद सर को देने का मतलब नहीं है कुछ, ही विल नॉट हैव कंटिन्यूटी, या कोई चैप्टर खत्म हो नहीं हो, तो उनके पास अगर प्रॉपर 2-3 दिन है तो आपको भी मजा आएगा और एक खत्म होगा, है ना। उसके बाद लॉ, और जैसे लॉ खत्म होगा फिर मैं और आनंद सर आ ही जाएंगे, खत्म कर लेंगे ये वाला, ठीक है। सर लॉ कब से कब है? पता नहीं बेटा,
आप लोग अच्छा। बोल रहे थे कि लॉ चालू होने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ, ओ अच्छा अच्छा, है ना? यस सर। मुझे लगा आपका कुछ प्लान मतलब पक्का बताया। नहीं नहीं नहीं, पक्का कुछ प्लान नहीं होता। मेरा प्लान था 16 तक लेने का, चेंज हो गया ना, यू नेवर नो। ओ हाँ, यस। डायनेमिक प्रोफेशनल स्टडीज में काम करते हैं हम लोग, कभी भी कुछ भी चेंज होगा, है ना? चलिए फिर हैव फन, खत्म कीजिए। थोड़ा थक गए हो तो आधा घंटा सो लीजिए, हाँ, उसके बाद मम्मी को बोलिए कॉफी बनाए, चाय बनाए, फिर काम पे लग जाइए, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय बच्चा, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.